Hello guys, welcome to Learning Redefined YouTube channel. So as you know, the last video we have uploaded on our channel, so it got a very good response from all of you. We have got around about 245 to 55 odd number of views we have got. So from now onwards we'll be uploading our videos on a very regular basis. So we hope to finish your syllabus well in advance, well before that time also, so you get a chance to revise all those things in your home also. And subsequently we'll also be telling you not to waste time for your only you just keep on preparing for your prelims examination but you are not focusing on your mains examination. So this can have a great impact at a later stage. So we'll just advise you to be prepared for the mains. From mains it is easy to clear prelims examination. So I Kanav Sharma, I will be taking your reasoning classes from now onwards. So as you can see behind my back, I have written a brief introduction about reasoning, what topics I will be covering. So basically what I have done is I have divided reasoning into three categories. I have gone through number of examinations which have been conducted in the recent times. So from there onwards I have came to a conclusion that most of the examinations are basically divided into these categories only. So if you cover all these categories, it will be easy for you to crack any reasoning exam pertaining to any examination. So I'll just start. The first category is the verbal reasoning category. In verbal reasoning category we have series, we have coding, decoding, we have directions, order ranking, blood relation, puzzles, data sufficiency, and syllogism. So from my analysis, what I have done is, by comparing the recently held examinations, I have came out with a number of questions which are usually asked from respective topic. So like you can see here, from series 1 to 5, questions pertaining 1 to 5 marks it can come. Similarly for coding and decoding, 1 to 2 marks question can come. Direction distance, 1 to 2 marks can come. Order and ranking, 1 to 2 marks can come. Blood relation, 1 to 2, and for puzzles it may range from 5 to 10. Guys, you got to focus very much here on this part, because the recent trend in the reasoning examination there has been a lot of focus on the puzzles. So it may range up to 15 also in some examinations. Because in RBI Grade B examination, I myself has appeared in the last examination. So there were puzzles of 15 marks. So that's a significant chunk. And similarly, data sufficiency 2 to 5 marks, syllogism 5 marks. Now coming to the second category, that is the analytical reasoning category. Now here the major marks holder is the inequality. Inequality, if it will come in a bunch of 5 questions. And machine input, as you can see, I have put a star here in machine input. So in machine input, star means ki if it will come, a set of 5 questions will come. But it comes rarely. You can expect it in the RBI examination or some SEBI examination, or some developmental or financial institution examination. So there you can expect this machine input. As regards IBPS has come from the past 1 to 2 years. No such question of machine input has come. What I have seen from, I am telling you. And similarly, decision making. This decision making part, it has been coupled with assumptions also. They tell you a situation and ask your views, how you will decide in that situation. So these questions, they are also picking up in the recent examinations. Coming to the third category, that is the logical reasoning category. Here you will get assumptions, arguments, course of action, cause and effect, and inference. If from logical reasoning, only one sort of question will come. Either it can be from assumption, from arguments, course of action, cause and effect, or inference, and it will be around 5 marks. So basically that is the schema for our reasoning. Today only I will be talking about, I will be starting this reasoning program from inequality. I will be starting analytical reasoning first. So I will be moving to inequality, and I will try to cover your inequality in the first lecture itself. So friends, ये जो आपका inequality part है, जो हम आज start कर रहे हैं, ये actually इसमें 3 to 4 types के question जो है वो range करते हैं. तो उन
उन क्वेश्चंस पे हम बारी बारी जाएंगे। सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो आपकी इनइक्वालिटी में है, इससे पहले मैं इसको लेक्चर को स्टार्ट करूं, देखिए मैंने यहां लिखा है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 5 मार्क्स। 5 मार्क्स इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मतलब यू कैन टेल कि 80 to 90% ये आने ही आने हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ध्यान से समझिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये इट्स नॉट अ लाइव सेशन, सो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। तो सब्सिक्वेंटली मैं आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी देयर। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा कि मुझे पता है कि आई विल कंसीडर कि किसी को ये इनइक्वालिटी नहीं आता है। मे बी मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस और आपको ये बिल्कुल आसान सा लगेगा, बट हमें बिल्कुल उस लास्ट बच्चे की तरफ देखना है जिसको ये बिल्कुल भी नहीं आता। सो मैं बेस से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप इज जिसमें आपको एक कंबाइंड सीरीज मिलती है, ये टाइप की। देखिए इसमें क्या है, एक ऑलरेडी ज्वाइंट एक इनइक्वालिटी है। देखिए बेसिकली इनइक्वालिटी में क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊं, इनइक्वालिटी में 3 साइंस यूज होते हैं, बेसिक साइन जो 3। ये देखिए, एक आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक लेस देन इक्वल्स टू, ये एक सेट हो गया। फिर उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन, दूसरा सेट हो गया। और तीसरा सेट आपका आता है इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू। ये 3 टाइप के जो सिंबल्स है, 3 सेट ऑफ सिंबल्स हम इनइक्वालिटी में यूज करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इन्हीं सिंबल्स में फ्रेम होते हैं। सो हमारा फर्स्ट सीरीज जो है, आप इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। हमें ये सीरीज है और ये नीचे उसके 3 कंक्लूजन्स पूछे गए हैं। हमें बताना है कि सीरीज को देख के ये बताना है कि कौन से वाला ऑप्शन इनमें करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखिए आजकल क्या हो गया है, पहले हमें सिर्फ राइट क्वेश्चन चेक करना पड़ता था, राइट ऑप्शन पे टिक करना पड़ता था, लेकिन आईबीपीएस हैज बिकम सो स्मार्ट। अब वो आपसे क्या करता है, आप लोग अपने माइंडसेट से जाएंगे कि आपको राइट वाले पर टिक करना है, बट वहां पे वो अगर आपने क्वेश्चन ऊपर नहीं पढ़ा तो वो वहां पे लिख देगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपने राइट वाले को टिक किया बट उसने पूछा था नॉट ट्रू, तो आपको आते हुए भी आपका क्वेश्चन चला गया। इसीलिए आपको बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड कामली क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये सीरीज है और ये 3 कंक्लूजन मुझे दिए हैं। मुझे चेक करना है कि इन तीनों में से, अभी मैं चेक कर रहा हूं कि कौन से वाला कंक्लूजन ट्रू है, फॉल्स नहीं ट्रू। हम सब्सिक्वेंटली चेक करेंगे इनको। ये देखिए इनइक्वालिटी को चेक करने का सिर्फ 2 रूल है। किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी, चाहे वो कैट का है, चाहे वो मैट का है, चाहे आईबीपीएस, आरबीआई, किसी भी एग्जाम का 2 रूल है। पहला रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है आपको चेक करना है क्या, फ्लो। फ्लो किसका, फ्लो ऑफ सिंबल्स। देखिए फर्स्ट रूल बोलता है आपको चेक करना है फ्लो। फ्लो क्या कहता है, मान लीजिए मैं एक साइड ले लेता हूं। जनरली जैसे मैं करता हूं, मैं वैसे ही आपको एडवाइस करूंगा। मैं हमेशा लेफ्ट से राइट इसको स्कैन करता हूं। कुछ लोग राइट से लेफ्ट भी इसको स्कैन करते हैं, सो आप पे डिपेंड करता है। मैं लेफ्ट से राइट इसको स्कैन करूंगा। देखिए फ्लो मींस कि अगर एक टाइप का, देखिए एक टाइप का सिंबल है तो वो ही पूरा चलेगा। एक टाइप से मेरी बात समझिएगा। एक टाइप में मेरा मतलब है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ये लेस देन आ गया, इस लेस देन ने क्या किया, इसके फ्लो को तोड़ दिया। इसके इस सीरीज के फ्लो को उसने तोड़ दिया। आगे मुझे देखने का जरूरत ही नहीं है, यहीं खत्म। यहां तक का कोई भी क्वेश्चन होगा मैं इतने यहां तक के एनालिसिस पे आंसर कर पाऊंगा। देखिए अगर यहां पे ये लेस देन ना होके, ये लेस देन ना होके ग्रेटर देन होता, फॉर इंस्टेंस यहां ग्रेटर देन होता, तो मेरा फ्लो कंटिन्यू करता। देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, फिर यहां पे आके मेरा फ्लो टूट जाता। तो एक टाइप का सिंबल आपका चलना चाहिए। देखिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक टाइप है, दोनों में ग्रेटर देन लगा है। लेस देन इक्वल्स टू एक टाइप है और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू एक टाइप है। तो हम फ्लो की बात कर रहे हैं। मुझे फर्स्ट कंक्लूजन देखना है ए इज ग्रेटर देन ई, क्या ये ट्रू है इस सीरीज की बेसिस पे। तो देखिए यहां ए है, यहां ई है, मुझे ए और ई के बीच में फ्लो देखना है। जो मैंने नंबर 1 आपको बताया, फ्लो देखना है। फ्लो देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, और उसके बाद क्या आ गया, लेस देन। मतलब फ्लो कंटिन्यू नहीं किया, यहां पे आके फ्लो रुक गया।
ग्रेटर का बात चल रहा था, ग्रेटर देन का बात चल रहा था, यहां आके लेस देन आ गया, तो उसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। जहां पे आपका फ्लो ब्रेक हुआ उसके बाद का कोई भी ऑप्शन आपको पूछेगा तो वो गलत है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंक्लूजन को लेते हैं। कहता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। देखिए ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सबसे पहली बात फ्लो देखना है। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक चेक करना है अपना, यहां से लेके यहां तक कोई फ्लो नहीं टूटा है, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी करेक्ट है। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी अगर करेक्ट है तो अगर ये ऑप्शन होता ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ये ट्रू होता? तो मैं बोलूंगा ये फॉल्स होता। क्यों फॉल्स होता? देखिए जो लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल्स हैं, इन सिंबल का प्रायोरिटी 1 होता है। जब सीरीज के बीच में ये आ जाते हैं तो ऑप्शन में भी इनके अगर ये ग्रेटर देन आया है और ग्रेटर देन के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आंसर में ग्रेटर देन प्रिवेल करेगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरह अगर लेस देन आया है तो आंसर में लेस देन इक्वल टू प्रिवेल करेगा, ना लेस देन प्रिवेल करेगा, सॉरी, ना कि लेस देन इक्वल टू। वो क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। तो देखिए ए इक्वल्स टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ये करेक्ट है, इस सीरीज में करेक्ट है। अगर ए इज ग्रेटर देन सी होता खाली तो ये इनकरेक्ट था। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही चला है, तो इसीलिए ये करेक्ट है। तीसरा आता है ए इज ग्रेटर देन डी। देखिए जो मैं आपको अभी क्वेश्चन बता रहा था, ए और डी, ये ए है और ये डी है, यहां तक फ्लो देखिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन डी, तो फ्लो तो चल रहा है। अब मुझे सिंबल डिसाइड करना है। ए और डी में फ्लो तो है, बिल्कुल फ्लो है, अब मुझे सिंबल डिसाइड करना है इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा आएगा। देखिए मैंने क्या बोला, नंबर 1 प्रायोरिटी है ग्रेटर देन की और लेस देन की, इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। देखिए ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी और सी इज ग्रेटर देन डी। तो फ्लो तो पूरा बना, लेकिन एक ग्रेटर, देखिए यहां पे 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, बट एक ग्रेटर देन आने की वजह से ये कंक्लूजन बनेगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। तो यही मेरे से कंक्लूजन में पूछा है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ये ट्रू है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको नहीं समझ आया है तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में मैं ट्राई करूंगा आपको दोबारा से समझ आ जाए। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये सेकंड एग्जांपल है, ये मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ये मुझे एक सीरीज है, मेरे पास एक सीरीज है, मेरे को 3 कंक्लूजन दिए हैं, मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन से वाला कंक्लूजन ट्रू है। देखिए पहला पूछता है रिलेशन डी और के बीच में, ये डी है और ये के है, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बताना है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले हमें फ्लो चेक करना है। देखिए हाँ, फ्लो चेक करने के लिए ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, वो या ग्रेटर देन खाली या लेस देन आएगा, आप फ्लो चेक कर लेंगे। लेकिन इक्वल टू का क्या इंपैक्ट होगा आपके फ्लो पे, वो मैं आपको अभी बताता हूं। ये देखिए जब भी इक्वल टू आएगा तो इक्वल टू जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इक्वल टू फ्लो पे कोई असर नहीं डालेगा। सो इक्वल टू जब आएगा तो आपको मानना है कि वो आपके साथ फ्लो में ही है, उसने आपके फ्लो को ब्रेक नहीं किया है। ये आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है। और देखिए हम अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखिए k इक्वल्स टू, मुझे k और d के बीच में रिलेशन पूछा है, k इक्वल्स टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू d। तो इक्वल टू मतलब फ्लो में है, मैंने आपको पहले बोल दिया इक्वल टू फ्लो पे कोई फर्क नहीं डालता है। और उसके बाद आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, तो मतलब कहीं भी कोई फ्लो आपका ब्रेक नहीं हुआ है यहां तक। अब मुझे साइन डिसाइड करना है, साइन क्या है। देखिए यहां से अगर मैं k और d के बीच में रिलेशन निकालूं तो क्या बनेगा। देखिए मैंने एक साइड k लिख लिया, एक साइड d लिख लिया, इक्वल टू न्यूट्रल, कोई साइन में फर्क नहीं डालेगा, तो बचता है एक ही सिंबल, कौन सा, ये वाला सिंबल, k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d। बट देखिए k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, जबकि वैसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, d और k के रिलेशन, d और k के बीच में रिलेशन पूछा है, जबकि मैंने रिलेशन निकाला है k और d के रिलेशन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इट इज d ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। मैंने साइन को रिवर्स कर दिया है सिर्फ। तो
मेरे पास ये कंक्लूजन बनता है D इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू K, लेकिन जबकि उसने क्या पूछा है D इज लेस देन K, मेरे पास बनता है D इज लेस देन इक्वल्स टू K, लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा है D इज लेस देन K, तो ये गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे D इज लेस देन इक्वल्स टू K होता तो मेरा ये रिलेशन ट्रू होता। सेकंड कंक्लूजन वो क्या पूछता है, सेकंड वो पूछता है W इज लेस देन इक्वल्स टू N। देखिए W और N के बीच में रिलेशन पूछा है, ये रहा आपका W, ये रहा आपका W, ये रहा आपका N, W और N के बीच में रिलेशन पूछा है, मैं यहाँ W लिख लेता हूँ, यहाँ N लिख लेता हूँ। देखिए W और N के बीच में फ्लो चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, सेम कैटेगरी के सिंबल्स है, तो मतलब फ्लो नहीं ब्रेक हुआ है। अब मुझे सिर्फ साइन डिसाइड करना है, एक में है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक में है ग्रेटर देन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन और लेस देन की हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है, कब, जब आपका फ्लो ब्रेक ना हुआ हो। तो मेरा आंसर बनेगा W और N के बीच में, W और N के बीच में। तो आप उसको एक बार ऐसे कर लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ N लिख लीजिए, यहाँ W लिख लीजिए, तो मेरा क्या बना, ये मेरा रिलेशन बना। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल था, इसने प्रायोरिटी ले लिया, ये मेरा आंसर बनेगा। अब देखिए मेरे कंक्लूजन में उसने क्या पूछा है, W इज लेस देन इक्वल्स टू N, तो मैं यहां से इसको ये भी लिख सकता हूं, W इज लेस देन N, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहाँ N और W था, मैंने W और N किया और सिंबल को चेंज कर दिया, तो W इज लेस देन इक्वल्स टू N, जबकि मेरा आया है W और लेस देन इक्वल्स टू N, तो ये रिलेशन गलत है। तीसरा रिलेशन देखिए क्या पूछता है, W इज ग्रेटर देन K, W और K के बीच में रिलेशन, ये रहा आपका K, ये रहा आपका W, बिल्कुल लास्ट। तो मैं यहाँ K लिख लेता हूँ, यहाँ W लिख लेता हूँ। सबसे पहले फ्लो चेक करूंगा, इक्वल टू, न्यूट्रल फ्लो छोड़ दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, मतलब फ्लो है क्योंकि सेम सेट ऑफ सिंबल्स है। तो अब मुझे साइन डिसाइड करना है, इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ठीक है चलेगा, आगे आ गया ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन आया, तो मेरा ये आंसर बनेगा K इज ग्रेटर देन W। उसने W और K की टर्म्स में पूछा है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, कैसे चेंज करूंगा, W यहाँ, K यहाँ, और सिंबल चेंज कर दिया। ये आपको ये देखना है, ये सिंबल किसको फेस कर रहा है, K को फेस कर रहा है, मैंने नीचे भी K को फेस करवा दिया, तो ये हो गया। मेरा आंसर बनता है W इज लेस देन K, उसने क्या पूछा है, W इज ग्रेटर देन K, तो क्रॉस। ये तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन में गलत है। गाइस आई होप आपको ये जो बेसिक, बिल्कुल जो इनइक्वालिटी का बेसिक था, मैंने उससे स्टार्ट किया, आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। अभी क्योंकि एक्चुअली ये बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस जरूर हमें बताएं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं स्लो चल रहा हूं, मुझे फास्ट करना है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से अपना पेस एडजस्ट करूंगा। मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि एक लेमैन को भी समझ आए, उस हिसाब से मैंने अपने आप को यहाँ प्रोग्राम करा था आपके सामने। बिल्कुल सिंपल चीजें से मैंने स्टार्ट कराया। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्टी भी बढ़ेगा, और उसके साथ ही जैसे जैसे अभी जो IBPS PO का आपको पता है आज कल परसों में एग्जाम हो रहा है, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं इनइक्वालिटी से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी जो नया नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, कोई भी जो वीडियोस है आप मिस ना करें। मेरे फ्रेंड जो है मिस्टर सूरज शुक्ला, वो अभी आपके लिए यहाँ पे क्वांट का सीरीज इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। उसी तरह हम अभी वी आर इन टच की हम आपके GS का, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन आपका अभी दूर है, बट वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम आपका सब साइमल्टेनियसली साथ में GS का लेक्चर भी स्टार्ट कर दे। तो आपका जो रिएक्शन है, अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, बट अपना रिएक्शन जरूर दीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो पाए। होप टू सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ रीजनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।